You remember up to where had we discussed in the last class? What had we discussed in the last class? Certain liquid assets. Yes, we discussed some accounting terms. We discussed business transaction. Then we discussed entity, proprietor, capital, drawings, operating cycle, goods, voucher, assets. And we were discussing classification of assets. First classification is on the basis of liquidity, in which we discussed there are three types: current assets, non-current assets, and liquid assets. Any doubt up to here? No, sir. Okay. Uh, I told you in the previous class then that in definitions, you cannot change any word, you cannot miss out any word, you cannot change the order of wording. Let's take an example once again. Suppose in the definition of accounting, you miss out the word recording. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing. This is the way the definition goes. Suppose you miss out the word recording. तो क्या हुआ? जब रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई तो आगे का कुछ भी नहीं हो सकता. ठीक है? So the definition will be wrong just by missing one word. Suppose you change the order of words. Suppose you write accounting is the art of classifying, summarizing, recording. Now again wrong. Classifying cannot be the first step. जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्लासिफाइंग नहीं हो सकता, और रिकॉर्डिंग बाद में तो हो ही नहीं सकता. रिकॉर्डिंग हैज टू बी द फर्स्ट स्टेप. सो अगेन योर डेफिनेशन बिकम्स wrong, right? So you cannot change the order of words. Thirdly, you cannot change any word. We took an example in the previous class. In this definition of capital, let us say amount invested by the proprietor in the business. If in place of amount you write money, then this definition becomes wrong, because capital can be in terms of any asset. It can be well, the amount of money, it could be the amount of furniture, it could be the amount of machinery, right? Anything. Yes, Dia. You raised hand. Yes, sir, to unmute myself. I have unmuted. Now you don't mute back. Okay, sir. Okay, so you will remain unmuted then. Okay. Okay. So we were discussing अगर अमाउंट की जगह आप इसमें कैपिटल में मनी लिख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि कैपिटल किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट हो सकती है, किसी भी एसेट के फॉर्म में, सिर्फ मनी के फॉर्म में नहीं. नाउ आई एम एडिंग वन मोर थिंग टू इट. You cannot add any word also to the definition. Even then the definition will become wrong. How? कैपिटल की कई एग्जांपल लेते हैं. कैपिटल के एग्जांपल में सपोज यहां पर कई बच्चे क्या करते हैं, आगे वर्ड ऐड कर देते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस. अब ये टू स्टार्ट द बिजनेस लिखने से डेफिनेशन गलत हो गई. क्यों गलत हो गई? क्योंकि कैपिटल ओनर कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है. इट इज नॉट समथिंग which can be invested only in the beginning to start the business. It can be invested anytime during the business. After 1 month, after 2 months, after 1 year, many times the proprietor can invest amount in the business. So that all is capital. But if you write to start the business, then you are limiting it to only in the beginning, and the definition becomes wrong and you get 0 marks. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. One more thing, in the book you will find at some place some definition is given, then in a long paragraph it is explained.
Then at some other place another definition of the same thing is given and another paragraph is given to explain it. ठीक है, अब उसमें कई बार क्या होता है, स्टूडेंट राइट्स वन लाइन डेफिनेशन फ्रॉम एनीवेयर इन द बुक और एग्जाम में उनके मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि वो ये जो मैंने लिखवा रहा हूं आपको डिस्कस कर रहा हूं उससे मैच नहीं कर रही होती. देन समटाइम्स द स्टूडेंट कम्स एंड से सर बुक में तो देखो यही लिखा है, आप प्लीज बताओ क्यों गलत है. सो लेट मी टेल यू इन एडवांस, बुक में अगर एक जगह एक डेफिनेशन दी हुई है और अलग अलग जगह अलग दी हुई है, ठीक है, तो या तो आप सारी लिखो. मैं जो आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं उसमें सारी डेफिनेशंस के मेन जो वर्ड हैं वो ले लिए मैंने और उन्हें कंबाइन करके एक डेफिनेशन लिखवा दी जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएं. ठीक है. दूसरी चीज, बुक में कई जगह डेफिनेशन वो स्टार्ट करते हैं एक लाइन से और फिर पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं उसे. तो या तो आप पूरा पैराग्राफ लिखो, अगर आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन लिख के छोड़ दी तो वो कंप्लीट नहीं हुआ. मैं जो आपको लिखवा रहा हूं उसमें पूरे पैराग्राफ की समरी आ गई. ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशंस वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्टली एज आई एम टेलिंग यू. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we come to the next classification of assets, that is on the basis of physical existence, whether the asset exists physically or not. On this basis, we have two types of assets, tangible assets and intangible assets. Tangible का मतलब होता है something which can be seen, which can be touched, right? For example, this bottle, we can see, we can touch, it is a tangible asset. Your chair, your table, your books, these are all examples of tangible assets because they can be seen and they can be touched also. Similarly, in a business organization, the examples of tangible assets are plant and machinery, furniture, building, goods, and so on. So anything which has a physical existence and can be seen and touched, that is a tangible asset. Clear? Yes, sir. Intangible assets are opposite of tangible assets, means which do not have any physical existence. They cannot be seen, they cannot be touched. Now, isn't this strange? जिस चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो देख नहीं सकते, जो टच नहीं कर सकते, वो एसेट कैसे हो सकता है? हो सकता है. एग्जाम्पल, गुडविल. लगातार एक बिजनेस काफी टाइम तक चलता रहता है तो धीरे धीरे वो इतना पॉपुलर हो जाता है कि उसके नाम से उसके प्रोडक्ट्स बिकने लगते हैं और काफी अच्छा वो अर्न करने लगते हैं. तो दिस इज कॉल्ड गुडविल, रेप्यूटेशन. ठीक है, इसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू. अब गुडविल को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सिमिलरली, अनदर एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज ट्रेडमार्क्स. ट्रेडमार्क क्या होता है? आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, उसका एक ब्रांड मार्क बनाया, ठीक है, और उस मार्क को आपने गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवा लिया. रजिस्टर करवाने से क्या होगा? नाउ नो वन एल्स कैन कॉपी दैट ब्रांड मार्क of yours, no one else can use that mark on their products without your permission. तो आपका मार्क, ब्रांड मार्क रजिस्टर हो गया. ठीक है, that is also an intangible asset क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. Yes, Prishita. No, sir, nothing. You had raised hand. Okay. Similarly, another example is patents. Do you have any idea what patents are? No, sir. Okay, let me tell you. When you invent or discover anything new, any new technology, you can get that technology registered with the government. Why will you like to get it registered? Suppose आपने बहुत साल मेहनत करके, बहुत पैसा खर्च करके, एफर्ट्स करके कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, ठीक है, किसी चीज की. सपोज आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जिसमें मूवी देखते हुए अभी हम साउंड उसकी सुन पाते हैं और पिक्चर देख पाते हैं, जो ऑडियो एंड विजुअल. सपोज आपने फ्रेग्रेंस भी डाल दी उसमें कि सीन में जो फ्रेग्रेंस थी, अगर एक
फ्लावर वैली में सीन शूट हुआ है तो आपको वो फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस भी आए जितनी बार आप वो सीन देखो। अब नई टेक्नोलॉजी आपने बहुत एफर्ट करके बनाई, आपने उस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए मार्केट में। अब मार्केट में देयर आर सम कॉपी कैट्स ऑल्सो, सो आफ्टर सम टाइम सम पीपल कॉपी योर प्रोडक्ट, आपकी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेते हैं, उसको आपका प्रोडक्ट खरीद के मार्केट से उसको अच्छे से रिसर्च करके पता कर लेते हैं क्या टेक्नोलॉजी है उसके पीछे, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी इन देयर प्रोडक्ट्स। तो आपने जो चीज इतनी मेहनत से बनाई थी, इतना टाइम लगा के, इतना एफर्ट लगा के, उन्होंने बस कॉपी कर लिया और वो उसे यूज कर रहे हैं। ऐसा ना हो इसके लिए जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी या नया प्रोडक्ट बनाते हो, यू कैन गेट इट पेटेंटेड विद द गवर्नमेंट। ठीक है, अगले 10-20 साल के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है कि ओनली यू कैन मेक प्रोडक्ट्स विद दिस टेक्नोलॉजी, नो वन एल्स कैन विदाउट योर परमिशन। क्लियर? तो पेटेंट्स वो भी एक इंटेंजिबल एसेट हो गए, क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा उस एसेट का, लेकिन कोई फिजिकल चीज नहीं है, आप उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, आप उसे देख। ठीक है, सिमिलरली in case of books, in case of stories, poems, songs, literature, the term used is copyright. आपने अगर कोई स्टोरी, कोई पोएम, कोई सॉन्ग कुछ लिखा, आप गवर्नमेंट के पास उसे रजिस्टर करवा सकते हो फॉर अ नॉमिनल फीस एंड यू गेट अ कॉपीराइट। बुक्स में आपने देखा होगा स्मॉल सी लिखा होता है सर्कल में, देखा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, that is a symbol of copyright. Means no one else can copy the material, the song, the literature, the story, the book without the author's permission. ठीक है, अगर कोई यूज करता है आपकी परमिशन के बिना तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next type of assets are fictitious or nominal assets. As the name suggests, fictitious मतलब झूठे, nominal मतलब जो सिर्फ नाम के हैं, नेम से, which cannot be realized in cash and no further benefit can be derived from them, but they are still existing in the balance sheet of the firm. ठीक है, let's take an example, इसको शॉर्ट में समझते हैं। एक हमारा एक्सपेंस होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये किसको कहते हैं? जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो शुरू में जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में, रजिस्ट्रेशन करने में, अभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ उससे पहले ही बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटे मोटे बहुत से खर्चे होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के, लीगल फॉर्मेलिटीज के, ब्रांड मार्क रजिस्टर करवाने के, इन सबको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये होते तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं तो मिलकर थोड़ा बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इनको हम क्या करते हैं, बिजनेस जब स्टार्ट हो जाता है तो सीधे फर्स्ट ईयर में ही हम पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं कर देते, एक्सपेंस शो नहीं कर देते। थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करते हैं, थोड़ा सा अगले 2-3 साल में, धीरे धीरे करके हम उन्हें क्लोज कर देते हैं उन एक्सपेंसेस को। तो जितना अमाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया, यानी उस ईयर का एक्सपेंस दिखा दिया, वो तो क्लोज हो गया। जितना बच गया वो बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट्स में फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन ना तो वो कैश में रियलाइज हो सकता है, ना ही उसका फर्दर अब कोई बेनिफिट मिलने वाला है। सो इनको हम कहते हैं फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। क्लियर? Sir, can you explain this again because there was a little confusion about this? श्योर। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे हो गए। ठीक है, लेट अस से 50,000 रुपीज के बहुत आपके ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस मिला के 50,000 रुपीज हो गए। अब आपने सोचा पहले साल ही अगर हम ये 50,000 सिर्फ फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस दिखा देंगे तो फर्स्ट ईयर में तो हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है, कुछ ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं है। तो आपने डिसाइड किया कि अच्छा हम एक काम करते हैं, इस 50,000 को में से हम 20,000 अभी इस साल दिखाते हैं, 20,000 अगले साल का एक्सपेंस दिखाएंगे, बाकी 10,000 को हम तीसरे साल में एक्सपेंस दिखा के धीरे धीरे इसे इंस्टॉलमेंट्स में क्लोज कर देंगे इस अकाउंट को। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपने 20,000 राइट ऑफ कर दिया।
क्लोज कर दिया उस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे अपना एक्सपेंस दिखा दिया। रिमेनिंग 30,000 विल अपीयर इन योर बैलेंस शीट, क्योंकि वो बैलेंस अभी क्लोज नहीं हुआ है। जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस क्लोज नहीं हुए होते वो सारे बैलेंस शीट में आते हैं, ठीक है। उनमें से जिनका डेबिट बैलेंस होता है वो एसेट साइड पे आते हैं, ठीक है, और जिनका बैलेंस क्लोज हो चुका कर देते हैं हम, वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पे आ जाएगा, लेकिन ना तो ये कैश में रियलाइज हो सकता है फर्दर, ना इसका कोई फर्दर बेनिफिट मिलना है, ये बस धीरे धीरे राइट ऑफ होना है और अगले 1-2 साल में। तो इसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि ये एसेट साइड पे अपीयर तो हो रहा है, लेकिन ना इसका बेनिफिट मिलना है कुछ और, ना ये कैश में रियलाइज होना है। क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay. Next category is wasting assets. Now, wasting assets is not something जिसको डस्टबिन में फेंकना है हमने, वो मतलब नहीं है वेस्टिंग एसेट का। तो क्या मतलब है? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज which are exhausted or consumed over a period of time are called wasting assets. For example, अगर आपकी माइनिंग कंपनी है, ठीक है, कोल माइंस हैं सपोज आपकी, या डायमंड माइंस हैं, या गोल्ड माइंस हैं, तो माइंस में से जब आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते जाओगे या कोल को एक्सट्रैक्ट करते जाओगे तो धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा, और एक दिन आएगा जब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिकॉज दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो माइन आपकी कहलाएगी वेस्टिंग एसेट। सिमिलरली, अगर आपका ऑयल एक्सप्लोरेशन का बिजनेस है, ऑयल वेल्स आपने खरीदे हुए हैं, उनमें से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे ऑयल खत्म होता जा रहा है, and one day it will be fully exhausted. So oil wells will be your wasting asset. Clear? Yes, sir. Yes, sir. This completes the classification of assets. Now we come to the next term, which is opposite of assets. Assets का opposite क्या होता है? Liability. Liabilities. Yes, very good. Liabilities. What are liabilities? जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्जा, या जो हमने उधार, कर्जा, ये सब मिलाकर होता है लायबिलिटीज। मींस ऑब्लिगेशंस और डेट्स। डेट्स में बी आता है लेकिन बोलने में साइलेंट होता है बी, ठीक है, तो हम लिखते हैं डेब्ट्स लेकिन प्रोनाउंस करते हैं डेट्स। ऑब्लिगेशंस और डेट्स पेबल इन फ्यूचर, मतलब जो भी हमने पेमेंट्स करनी है, हमने कोई लोन लिया हुआ है कहीं से, वो वापस करना है, हमने किसी से उधार पे गुड्स खरीदे हुए हैं, उसकी पेमेंट करनी है, बिजली का बिल आया हुआ है, उसकी पेमेंट करनी अभी बाकी है, टेलीफोन का बिल आया हुआ है, उसकी पेमेंट बाकी है, एम्प्लॉइज की सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन हमने अभी पे नहीं की तो वो पे करनी बाकी है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लायबिलिटीज। यस, यू वर सेइंग समथिंग? No, sir. Okay. Now we come to classification of liabilities. Just like assets, liabilities are also classified into current and non-current. Classification का basis भी वही है। Current liabilities are the amounts to be paid within a period of 1 year or within one operating cycle, whichever is longer. तो अगर किसी बिजनेस फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स या उससे कम पीरियड का है तो हम देखेंगे 1 ईयर। मतलब जनरली जो अमाउंट्स 1 साल के अंदर अंदर पे हो जाते हैं उन्हें हम कहेंगे करंट लायबिलिटीज। जनरली जो पे हो जाते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई अमाउंट 1 साल से ज्यादा लग जाए पे करने में, बट जनरल टर्म्स में हम बात करते हैं। But if the operating cycle of the firm is more than 1 year, let us say 15 months, तो फिर हम 1 ईयर वाला क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, फिर हम 15 मंथ्स देखेंगे। मतलब जनरली जो अमाउंट्स उस बिजनेस में 15 मंथ्स के अंदर अंदर पे हो जाते हैं, they will be called current liabilities, others will be called non-current liabilities. So non-current liabilities are amounts to be paid after a year or after an operating cycle, whichever is longer.
क्लियर? करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। Yes, sir. ठीक है, करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल में हम कह सकते हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, टेलीफोन बिल पेबल, क्रेडिटर्स। ठीक है, वो भी आगे टर्म भी आएगी, क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार पे गुड्स खरीदे हुए हैं, उनकी पेमेंट करनी है। नॉन करंट लायबिलिटी का एग्जांपल हो सकता है कोई हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी मनी लेंडर से, तो वो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। थर्ड टाइप ऑफ लायबिलिटीज आर कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ये करंट नॉन करंट से बिल्कुल अलग है। ठीक है, contingent liabilities are those which may become payable on happening of some specific event. ठीक है, which are not our liabilities as of now, but which may or may not become our liability in future depending on some event. Contingent का मतलब, contingency का मतलब होता है some happening, some situation. तो जो सिचुएशन पे डिपेंडेंट है, यानी आज की डेट में वो हमारी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स ने एक लोन लेना है बैंक से, तो एक्स बैंक में गया लोन लेने के लिए। बैंक ने कहा कि भाई हम आपको लोन ऐसे नहीं दे सकते, वी डोंट नो यू, यू आर नॉट आवर रेगुलर कस्टमर, आप हमारे किसी रेगुलर कस्टमर को लेकर आओ जो आपकी गारंटी दे, तो हम आपको लोन दे देंगे। ठीक है, Now this Mr. X comes to you. आप उस बैंक के रेगुलर कस्टमर हो, तो ये मिस्टर एक्स या मिस एक्स आपके फ्रेंड हैं, वो अप्रोच करते हैं आपको कि भाई मुझे लोन चाहिए बिजनेस के लिए, आप प्लीज गारंटी दे दो मेरे लोन की। एंड यू बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड, आप उसके लोन की गारंटी देने के लिए तैयार हो जाते हो। अब लोन की गारंटी अगर आप दे रहे हो तो इसका क्या मतलब है? मतलब आप बैंक को ये राइटिंग में साइन करके दे रहे हो कि अगर उसने लोन रीपे नहीं किया टाइम पे, तो बैंक आपसे रिकवर कर लेगा वो पैसे, आप पे करोगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया कंटिंजेंट लायबिलिटी का। इस लोन को रीपे करना, इट इज नॉट योर लायबिलिटी, इट इज द लायबिलिटी ऑफ मिस्टर और मिस एक्स। ठीक है, लेकिन अगर उसने पे नहीं किया और गारंटी क्योंकि आपने दी हुई है, तो आपको पे करना पड़ सकता है इन दैट सिचुएशन। इज द एग्जांपल क्लियर? Yes, sir. सर तो ये जो लाइबिलिटी है वो हमारी लाइबिलिटी है या फिर उसकी? हमारी लायबिलिटी नहीं है, उसकी लायबिलिटी है। लेकिन अगर उसने टाइम आने पर पे नहीं किया तो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, बन सकती है। ठीक है, तो आज की डेट में ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बन सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वेदर दैट पर्सन पेज और डज नॉट पे टू द बैंक। ठीक है, तो ऐसी लायबिलिटीज क्योंकि हमारी लायबिलिटी नहीं है अभी, उन्हें हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते क्योंकि लायबिलिटी है ही नहीं। लेकिन हमने उन्हें अपने फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया अभी। सर कंप्लीट नहीं हुआ, ओनली फर्स्ट पॉइंट। ओके, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एक होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कहता है कि ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज टू बी शोन। आपने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा होगा रेलेवेंस, है ना? Yes, sir. तो रेलेवेंस क्या कहता है? जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सब डिस्क्लोज करो। तो ये इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करनी जरूरी है ताकि हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे लेंडर्स को पता चले कि हाँ ऐसी भी कोई लायबिलिटी बन सकती है फ्यूचर में। उसको माइंड में रखते हुए वो डिसाइड करें कि वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस और नॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस शीट में तो नहीं दिखा सकते, उसे बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के नीचे एक फुट नोट के फॉर्म में हम लिख देंगे दैट आवर फर्म हैज टेकन अ गारंटी, हैज गिवन अ गारंटी ऑफ अ लोन taken by such and such person payable on this date. If that person does not pay, then we may have to pay. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So assets and liabilities clear. Assets मतलब जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, वो एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो गाड़ी, बंगला वगैरह ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एसेट है।
और जो हमने पे करना है किसी को, उधार है, लोन है, ऑल दोज आर लायबिलिटीज। तो जहां तक हो सके हमें अपनी सेविंग्स कर करके अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहिए, वेल्थ को बढ़ाना चाहिए, और लायबिलिटीज को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। लोन्स हमें अवॉइड करने चाहिए, क्रेडिट कार्ड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक मैंने लिंक भी आपके साथ शेयर किया था यूट्यूब का, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। Yes, sir. Yes, sir. Now next term is receipts. Receipts are amounts received. I repeat, receipts are amounts received. जब भी हमें कोई अमाउंट कहीं से मिला तो हमारे लिए वो रिसीट है। ठीक है, रिसीट वर्ड एक और सेंस में यूज होता है। जब कोई अमाउंट मिलता है हमें तो हम लिख के देते हैं रिसीव्ड दिस मच अमाउंट फ्रॉम दिस पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ दिस, उस डॉक्यूमेंट को भी रिसीट कहते हैं। तो इस रिसीट वर्ड के दो मतलब हैं, एक वो अमाउंट जो हमें मिला है, दूसरा वो डॉक्यूमेंट जिसपे हम लिख के दे रहे हैं कि हाँ हमें अमाउंट मिल गया है। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अमाउंट वाला है, रिसीट्स आर द अमाउंट्स रिसीव्ड। ठीक है, रिसीट्स कैन बी मेनली ऑफ टू टाइप्स, capital receipts, revenue receipts. Now let us understand what are these. Capital receipts are amounts received leading to increase in capital or increase in liabilities or decrease in non-current assets. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ रिसीट्स के। सपोज हमने कहीं से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तो हमारे लिए रिसीट है ये। ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी बिजनेस में, तो वो भी बिजनेस के लिए रिसीट है। ठीक है, हमने गुड सेल किए, उससे जो पैसे आए वो भी रिसीट है। इन रिसीट्स में कुछ डिफरेंस है, कैपिटल लोन एक तरफ और गुड्स को सेल करके जो पैसे आए वो दूसरी तरफ। इज देयर एनी डिफरेंस? So one we have to pay. The loan we have to pay in the future. वेरी गुड। एंड अनदर डिफरेंस इज कि जब हम ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और वो कभी कभी होती है। सेकेंडली, फ्रीक्वेंटली भी हो सकती है बट जनरली कभी कभी होती है। सेकेंड इज कोई नॉन करंट एसेट, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ रही है, विच हैज टू बी पेड बैक इन फ्यूचर। ठीक है। थर्ड इज अगर हमने कोई मशीन बेच दी तो उससे भी पैसे आए, वो भी रिसीट है, लेकिन उससे हमारा कोई फिक्स्ड एसेट, कोई नॉन करंट एसेट हमारा कम हो गया। तो इस तरह की रिसीट्स को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, जो जनरली फ्रीक्वेंटली नहीं होती और जिनसे या तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है या लायबिलिटी बढ़ जाती है या फिर कोई नॉन करंट एसेट हमारा, फिक्स्ड एसेट कोई हमारा कम हो जाता है। क्लियर? Yes, sir. और गुड्स को सेल करने से जो हमारा रेगुलर पैसा आता है, मतलब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर स्टेशनरी शॉप है तो स्टेशनरी आइटम्स बेच बेच के जो रेगुलरली पैसा आएगा हमारे पास, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट। अगर हम सपोज फर्नीचर शॉप है हमारी, तो फर्नीचर बेच बेच के जो हमारे पास पैसा आ रहा है रेगुलरली, वो हमारा रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है। अगर कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, सपोज कोई बस ट्रांसपोर्टर है, बसेस चल रही हैं, तो बस की टिकट्स के थ्रू जो उनके पास रिसीट्स आ रही हैं, वो उनकी रेवेन्यू रिसीट है। सो रेवेन्यू रिसीट्स को हम सिंपली रेवेन्यू भी कहते हैं। तो अगर हम कहें रेवेन्यू तो मतलब है रेवेन्यू रिसीट्स। इन्हें हम इनकम भी कहते हैं। इनकम का भी मेन वही है, रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है। सो रेवेन्यू रिसीट्स or revenues or incomes, all these three terms mean the same thing. These are amounts received in the normal and regular course of business without any effect on liabilities and non-current assets. जिनसे देखो, जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो ना तो हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, ना कोई हमारा फिक्स्ड एसेट्स कम हो रहे हैं, ना मशीनरी बिक रही है, ना बिल्डिंग, ना फर्नीचर। ठीक है, गुड्स बिक रहे हैं, गुड्स हमारे करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट नहीं है। तो इसलिए ना लायबिलिटीज पे इफेक्ट आ रहा है, नॉन करंट एसेट्स पे। और ये रेगुलरली ये रिसीट हमें मिलती रहती है बिजनेस में, हमारी मेन रिसीट ही बिजनेस करने की ये है। तो दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। फॉर एग्जांपल सेल्स,
अगर किसी का होटल बिजनेस है तो उसके लिए रेंट रिसीव, जो रूम्स का रेंट आएगा, या प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का बिजनेस है किसी का तो रेंट जो आएगा वो उसकी रेवेन्यू रिसीट हो गई। किसी का काम पैसे लेंड करने का है, मनी लेंडर है कोई, या बैंक्स हैं, तो उनके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड उनकी रेवेन्यू रिसीट हो गई क्योंकि रेगुलर इनकम है उनकी वो। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. सर कैपिटल रिसीट्स रेगुलर होते हैं या नहीं? कैपिटल रिसीट्स रेगुलर जनरली नहीं होती, रेयरली हो सकती हैं कि सपोज आपने आज लोन लिया, 2 दिन बाद फिर कोई और लोन ले लिया, 2-3 दिन बाद फिर कोई और लोन ले लिया, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। या आपने कोई मशीन आज बेची, फिर 2 दिन बाद कोई फर्नीचर बेच दिया, फिर 1-2 दिन बाद कोई बिल्डिंग बेच दी, ऐसा जनरली नहीं होता। बहुत रेयर केस में हो सकता है लेकिन जनरली नहीं होता। लेकिन वो हमारा मेन क्राइटेरिया नहीं है, दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया बट दैट इज नॉट द मेन क्राइटेरिया। मेन क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई कैपिटल या लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है रिसीट से, या नॉन करंट एसेट में डिक्रीज हो रहा है, तो वो कैपिटल रिसीट है। और ऐसा नहीं हो रहा, रेगुलर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीट आ रही है विदाउट एनी इफेक्ट ऑन लायबिलिटीज, विदाउट एनी इफेक्ट ऑन नॉन करंट एसेट्स, देन दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट। क्लियर? तो सर जैसे अगर हमने गुड सेल करे तो उससे कैपिटल रिसीट भी तो मिल रही है क्योंकि कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू भी कह सकते हैं उसे। नहीं, गुड्स हमारे नॉन करंट एसेट नहीं है, करंट एसेट है। करंट एसेट कम हो रहा है, उससे जो रिसीट आ रही है दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट, दैट इज नॉट कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट वो जिससे डायरेक्टली कैपिटल इंक्रीज हो रही हो। आप जो एग्जांपल ले रहे हो कि हाँ गुड्स बिकेंगे तो सेल होगी, सेल होगी तो कुछ प्रॉफिट भी होगा, वो प्रॉफिट बाद में हमारी कैपिटल को इनडायरेक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। डायरेक्टली जब कैपिटल इंक्रीज होती है, मतलब जब ओनर और पैसे इन्वेस्ट करता है, तब कैपिटल रिसीट है। इनडायरेक्टली प्रॉफिट के थ्रू हो रही है तो वो नहीं, क्योंकि गुड्स हमारे करंट एसेट है। क्लियर? यस सर। रिसीट्स का ऑपोजिट होता है एक्सपेंडिचर। Expenditure is the amount spent or liability incurred for business use. I repeat, amount spent or liability incurred for business use. बिजनेस के पर्पस के लिए कोई भी अमाउंट हमने खर्च किया या कोई लायबिलिटी इंकर कर ली तो वो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर कैन बी मेनली ऑफ 3 टाइप्स। पहली 2 टाइप तो वही हो जाएंगी जैसे रिसीट्स थी, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। इसी तरह से एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। थर्ड टाइप हम अभी डिस्कस करेंगे इन दोनों के बाद। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम क्राइटेरिया है, नॉर्मली प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर एंड लीड्स टू इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट्स, जिसका बेनिफिट जनरली 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए मिलता है, पहली कंडीशन ये। और दूसरी, जिससे कि हमारा कोई नॉन करंट एसेट बढ़ जाता है, जैसे बिल्डिंग परचेज की, मशीनरी परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट जब हमने परचेज किया, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? Yes, sir. फर्स्ट एग्जांपल परचेज ऑफ अ नॉन करंट एसेट, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। सेकेंड इज एक्सपेंडिचर फॉर एक्सटेंशन और मेजर इंप्रूवमेंट ऑफ अ नॉन करंट एसेट। अब ये इंटरेस्टिंग है, इसका क्या मतलब है? सपोज आपने एक बिल्डिंग खरीदी, तो ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल। Capital. एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, क्योंकि फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है आपका, ठीक है। अब सपोज कुछ टाइम के बाद आपने उस बिल्डिंग पर एक और फ्लोर बनवा दिया या एक और रूम ऐड करवा दिया, तो ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर है? Capital. कैपिटल। यस, वेरी गुड, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि उस एसेट को आपने एक्सटेंड किया है या उसमें मेजर इंप्रूवमेंट की है, ठीक है। सपोज आपने उस बिल्डिंग पे कुछ छोटा मोटा रिपेयर का एक्सपेंस बीच में करवा दिया कभी, या कहीं पे व्हाइट वॉश करवा दी थोड़ी सी, तो Sir, revenue. वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि ना उसमें एसेट में कोई एक्सटेंशन हो रही है, ना कोई मेजर इंप्रूवमेंट हो रही है,
ठीक है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एंड आफ्टर परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट टू ब्रिंग इट टू यूजेबल फॉर्म। वापस अपने एग्जांपल पे चलते हैं। एक बिल्डिंग हमने खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उस बिल्डिंग को आपने व्हाइट वॉश करवाया या रिपेयर करवाया यूज करने से पहले, ताकि वो यूजेबल फॉर्म में आ जाए, दैट विल ऑल्सो बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर एक बार यूज करना शुरू कर दिया, उसके बाद जो छोटी मोटी रिपेयर करवाते रहते हैं, और द एक्सपेंस वी इंकर ऑन व्हाइट वॉश, that can be revenue expenditure. But whenever we buy an asset, initially उस पे जो भी खर्चा होता है उसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए, that is capital expenditure. Let's take another example. एक मशीन आपने खरीदी, एसी खरीदा एक, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस एसी को इंस्टॉल करने पे 3,000 रुपए और खर्च किए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो भी एसी की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। ऐसे ही बिल्डिंग पे जो इनिशियल व्हाइट वॉश कराया, वो खर्चा भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, एक बार यूज करना शुरू कर दिया, फिर उस पे जो छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं मेंटेनेंस के, दोज विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Sir, if we buy the building and if we take it for, if we give it for rent, then the expenditure done will be revenue or capital? क्या बिल्डिंग खरीदने का तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा इन एनी केस, क्योंकि वो नॉन करेंट एसेट है। सर लेकिन अगर हमने उसे रेंट पे दे दिया, तो जो उस पे हमने इनिशियली कॉस्ट किया था कि हमने उसे व्हाइट वॉश कराया, तो वो सब रेवेन्यू होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर? नहीं, इनिशियली सारा कैपिटल ही होगा। एक बार यूज करना शुरू कर दिया, उसके बाद रेवेन्यू, छोटे मोटे मेंटेनेंस एक्सपेंस। क्लियर? ओके सर। Okay. Yes. So we'll stop over here today. Any doubts? Anyone? We'll continue with this discussion of expenditure in the next class and some more accounting terms. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.